Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aga English Grammar Tips. Today our topic is Descriptive Statistics, Unit number 5, Part 1, Measures of Central Tendency. Introduction. In this unit you will study three main measures of central tendency: the mean, median and the mode. The main purpose of measures of central tendency is to identify the location of the center of various distribution. This helps us to get a better idea as to where the center of distribution is located. Objectives. After reading this unit, you will be able to write down the goals of measure of central tendency, explain the characteristics of good measures of central tendency, determine mean of a given set of data, explain merits and demerits of mean, define median, explain procedure for determining median in case number of scores is even or odd, explain merits and demerits of median, calculate median of a given data, define mode, explain merit and demerit of mode, calculate mode of a given data. तो इसमें पार्ट 1 में हम हाफ चीज़ें पढ़ेंगे और हाफ चीज़ें हम जो है पार्ट 2 में पढ़ेंगे. लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और आपके साथियों को जो फेलोज़ हैं उनको भी को भी हेल्प हो सके. इंट्रोडक्शन. Measures of central tendency are some of the most basic and useful statistical function that gives us an easy way to describe a set of data with a single number. The two most commonly used measures of central tendency for numerical data are the mean and the median in the form of group and ungrouped data. The goal of measure of central tendency is to condense data in a single value, to facilitate comparison between data. The most important goal of the measuring central tendency or average is to find out a value that can represent the whole data. Good measures of central tendency should be strictly defined, be simple to understand and easy to calculate, be based on all values of given data. Mean. Mean is the most common type of averages. It is a value obtained by dividing sum of all values by their numbers. There are two methods to calculate mean with group and ungrouped data. Number 1 is direct or long method. Number 2 is indirect or short method. Ungrouped data. Direct method. अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट मेथड देखना है. डायरेक्ट मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द साइज ऑफ द फिगर इज स्मॉल. जब साइज ऑफ द फिगर स्मॉल होता है तो अब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए. मीन का फार्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स एंड ओवर एन. ठीक है, समीशन ऑफ एक्स ओवर एन. अब एक्स क्या है? एक्स जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं. For example, calculate the mean of the following data: 3, 5, 7, 4, 5, 5. 3 plus 5 plus 7 plus 4 plus 5 plus 5 is over 6 and it is equal to 4.8. जब आप इसे डिवाइड करेंगे, यानी जो ऊपर हमारे पास जो मैंने बात कही थी समीशन ऑफ एक्स का मतलब होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी भी हैं उन्हें आप प्लस कर लें और उन्हें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे कर दें. यानी कि जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी, फॉर एग्जांपल वो 6 थी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें तो देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन वैल्यूज़ में हमने से डिवाइड कर दिया. दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड. एंड द सेकंड इज़ इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है, फार्मूला इसका क्या है? पी एम प्लस समीशन ऑफ एक्स माइनस पी एम ओवर एन, पी एम प्लस समीशन ऑफ डी ओवर एन, जिसका फार्मूला है. अब व्हाट इज़ पी एम? PM इज़ प्रोविजनल मीन. प्रोविजनल मीन. अब प्रोविजनल मीन को मैं पहले डिफाइन यहीं पे कर दूं कि प्रोविजनल मीन जो है ये डाटा के अंदर से किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट किया जा सकता है. किसी भी वैल्यू को हम सिलेक्ट कर सकते हैं. D इज़ इक्वल टू डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम PM. N इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़.
अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास डाटा आ गया 357455। एक्स वैल्यूज़ हमारे पास जितनी भी थी ये सारी हमारे पास एक्स वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास क्या आया, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस पी एम, ठीक है, प्रोविजनल मीन को लेना है आपने। अब प्रोविजनल मीन किसी भी वैल्यू को आप ले सकते हैं डाटा के अंदर से। हमने सेलेक्ट कर ली 7, ठीक है। अब 7 को हमने एक्स में से सारे अंदर से हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो है वो जवाब आ गया -4 -2 0 -3 -2 एंड -2, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ एक्स माइनस पी एम, एक्स माइनस पी एम। सो अब हमारे पास एक चीज़ निकल आई, समीशन ऑफ डी। समीशन ऑफ डी को हमने क्या कहेंगे कि समीशन ऑफ डी क्या है, हमारे पास जो था डी जो आया, व्हाट इज़ डी, ये था ना -4 -2 0 -3 -2 -2। तो इसमें हमने क्या किया, समीशन ऑफ डी कर लिया, -13 बन गया हमारे पास। फॉर एग्जांपल -4 एंड -2 बन गया -6, -6 और -3 -9 बन गया, -9 और -2 -11 और -2 दोबारा आपने इसको इंक्लूड किया तो ये बन गया -13। पी एम जो प्रोविजनल मीन आपने लिया था इज इक्वल टू 7 एंड एन इज इक्वल टू 6। अब आपके लिए सॉल्व करना कोई भी बड़ी मुश्किल बात न रही। मीन इज इक्वल टू पी एम प्लस समीशन ऑफ डी। समीशन ऑफ डी आपके पास मौजूद है -13 ओवर एन, ठीक है। एन आपके पास क्या है, 6। तो अब पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला, 7 क्या था हमारे पास, प्रोविजनल मीन था, प्लस -13 हमारे पास क्या था, डी था, समीशन ऑफ डी था, और अब उसके बाद ओवर 6 जो था वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ था, तो हमारे पास मीन आ गया 4.8। दोनों सीन में ये ज़रा देखिएगा कि दोनों सीन में आंसर हमारे पास 4.8 ही आ रहा है। ये था डायरेक्ट मेथड और वो था इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। The direct and indirect method answer are always same. If answer were not same, it's mean that something is wrong. अब हम चलते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। ग्रुप डाटा जब आपके पास इंटरवल्स आ जाते हैं, जैसे ये देखें ये इंटरवल्स आ गए हैं, पहले उसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ग्रुप डाटा frequency distribution, when a large group of atoms is collected, the value of the atoms should be organized in order to facilitate statistical analysis। तो इसमें आ गया हमारे पास इंटरवल आ गया। इंटरवल्स आ जाएंगे तो ये किस चीज़ की निशानी होता है, हमारे पास इंटरवल जो निशानी है ये ग्रुप डाटा की होते हैं। साथ में फ्रीक्वेंसी हमें दी जाएगी, ठीक है। एक्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल जाएगी और ये जो एक्स है ये भी हमारे पास एक चीज़ फाइंड आउट होगी, ठीक। अब एफ एक्स आपने लेना है तो फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ आप एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का भी समीशन आपने निकाल लिया। समीशन ऑफ एफ जो है वो हमारे पास आ गया 188 एंड समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3612 यानी 3612। अब मैं दोबारा एक मतलब रिपीट करना चाहूँगा कि एफ एक्स निकालना मुश्किल नहीं है। एफ ये था और एक्स ये था, इन दोनों को 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 4, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया आ गया 72, 21 को 12 से मल्टीप्लाई किया 252, 47 को 16 से मल्टीप्लाई किया 752 आ गया, ठीक है। इस तरह ये दो चीज़ें आपको मिलती हैं, फ्रीक्वेंसी भी और एक्स भी, ठीक है, जो वैल्यूज़ होती हैं ये आपके पास आ गई। इस तरह फिर आप इजीली जो है उसको यहाँ से इसका एफ एक्स निकाल के उसका समीशन निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ द वैल्यूज इंडिविजुअल क्लास, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, इंडिविजुअल क्लास, ठीक हो गया। इंडिविजुअल क्लास को मैं डिफाइन कर दूँ यानी जिसे आप मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 6 है, जब भी हमें आएगा ग्रुप डाटा आएगा तो ग्रुप डाटा में हमें फ्रीक्वेंसी मस्ट दी जाएगी। एक्स हम फाइंड के भी कर सकते हैं, आप फाइंड करना है एक्स, व्हाट इज़ एक्स, एक्स इज़ मिड पॉइंट। 2 और 6 का दरमियानी जो पॉइंट है दैट इज़ 4, 6 एंड 10 का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो 8 है, 10 - 4 यानी 10 और 14 के दरमियान जो है वो क्या वर्ड आ रहा है, 12 आ रहा है,
14 और 18 के दरमियान 16 आ रहा है, तो ऐसे करके हमने इसमें से x भी फाइंड आउट कर लिया, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी, और फिर fx हमने निकाल लिया। अब देखिएगा, द मिड पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल क्लास इज इक्वल टू x, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल क्लास इज इक्वल टू f, summation f is equal to the sum of the frequencies, mean is equal to summation of fx over summation of f, यानी ये उसका फार्मूला है मीन का, summation of fx over summation of f, summation of fx आपके पास आया था 3612 और summation of f आपके पास आया था 188, and that is mean is equal to 19.21. B, indirect method find to mean. अब इसमें भी सेम लाइक दैट कि इसमें हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। तो नंबर 1 पे आपने वैसे ही जैसे x फाइंड किया, इसका आपने इसके मिड पॉइंट्स ले लिए, फ्रीक्वेंसी ले ली, और यहाँ पर देखें x माइनस 20, अब ये 20 किधर से आया, इसके बारे में आप देखें, वेयर pm, ठीक है, इससे नेक्स्ट स्लाइड में कहता है वेयर pm इज इक्वल टू 20, और pm मैंने प्रोविजनल मीन जो था, मैंने आपको कहा था कि आप डाटा में से किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर दोबारा देखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन थी, x मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लिया, और हमने अपने पास से प्रोविजनल मीन रख लिया, x माइनस 20 कर लिया, ठीक है, x माइनस 20, ये था हमारे पास x, इसमें से हमने माइनस किया 20, तो हमारे पास आंसर आ गया -60, ठीक है। अब 20 भी देखेंगे इसी डाटा के अंदर मौजूद है, ठीक है, डाटा के अंदर था और उधर से हमने इसको लिया, x माइनस 20 किया तो -16 आ गया, x माइनस 20 किया तो यहाँ पर 8 में से जो है वो निकाला, x माइनस 20 किया, यानी 8 में से 20 माइनस किया तो -12 आ गया, 12 में से -20 किया तो -8 आ गया, 16 में से -20 किया तो -4 आ गया, 20 में से -20 किया तो 0 आ गया। सो इस तरह करके हमने इसको सारे को फाइंड आउट किया जी। अब हमारे पास जो है वो लेना है हमने एफ डी लेना, तो कोई भी मुश्किल बात नहीं है, ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी और ये था आपके पास डी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई करते जाएं डी के साथ, दैट इज़ -16 -108 -168 -188, सेम लाइक आप इसको करके इसका समीशन ले लें, वेयर pm इज इक्वल टू 20, summation of fd is equal to -48, summation of f is equal to 188, mean is equal to pm plus summation of fd over n, मीन इज इक्वल, अब इसके अंदर देखिए मीन का फार्मूला क्या है, pm प्लस pm क्या था हमारे पास 20, प्लस समीशन ऑफ fd हमारे पास क्या था -148, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही थी, ओवर n जो था वो था, यानी कि समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समीशन ऑफ f आएगा यहाँ पे, या n नहीं आएगा, यहाँ पे f आएगा, एंड दैट इज़ 188, 20 माइनस 0.79, मीन इज इक्वल टू 19.21. Here formula is called estimator, answer is called estimate. फार्मूला जो है उसे हम एस्टिमेटर कहेंगे, और जो उसका आंसर है, ठीक है, आंसर इज़ कॉल्ड एस्टिमेट, एंड दिस होल प्रोसीजर इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन, और इस पूरे प्रोसीजर को हम एस्टिमेशन कहेंगे। एडवांटेजेस ऑफ मीन, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड calculate, it is used for further analysis and treatment, it is based upon all the values of the given data, it provides a good basis for comparison. Disadvantages of mean, it can be calculated if any observation is missing, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन मिस हो जाए तो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली। थैंक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा।